Hello friends, welcome back to my channel. This is your friend Deepak Kala and you are watching Canadian Vibes. तो फ्रेंड्स आज मैं अक्षित शाह की जर्नी का सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैंने उनसे बात की उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आप अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेटअप करके अपने आप को पुश कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको कहीं भी लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या वो धीरे बोल रहे हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप ये वीडियो पूरी देखें। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्चुअली हियर एंड हु आर फर्दर प्लानिंग टू कम हियर, उनके लिए बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो एंड वॉच दिस एपिसोड। एक चीज जो मुझे पता चली थी आपसे बात करते हुए फोन पे कि आप जब अपनी स्टडीज कर रहे थे, एट द पैरेलल टाइम यू वर आल्सो मैरिड एंड योर वाइफ वाज आल्सो स्टडीइंग समवेयर। तो Yes. मींस ये कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? शी वाज आल्सो देयर इन कनाडा, और मींस हाउ डिड यू मैनेज दिस लॉन्ग डिस्टेंस स्टडीज, योर जॉब एंड एवरीथिंग? So it was after me coming here. It was an arranged marriage. So everybody was clear about the situation कि मैं अभी तक settled नहीं हूँ. I'm just like set. मेरा studies शुरू हुआ है तो PR बाकी है, बहुत कुछ बाकी है. But even then everybody decided to go ahead. तो in a way कि मेरे wife जो है वो भी as a student आएंगे, वो उनकी डिग्री करेंगे. She was an architect, so she went to University of British Columbia School of Architecture. Or she was doing her masters there. I was doing my masters here. Even though like we were not super adult kind of like 23, 25 essay, but we had that maturity. Give us space, like we will keep studying, keep focusing. ऐसा नहीं है कि हम दोनों में प्यार नहीं है, but not wasting a lot of time calling and like lovey-dovey chats and all that. Just bang on. आप अपना पढ़ाई करें, मैं मेरा पढ़ाई करूं. Like I used to make sure that I will sleep like 6 hours a day. मेरे multivitamins में time पे लूं. I will never cook. I mean rarely cook. मैं Tim Hortons या Subway में खा लेता था, but healthy. Like जैसे Subway में I will always eat veggie salad वगैरह. हर Sunday मैं गुरुद्वारा जाके full meal लेता था, so that you get that यस। nutritional value as well. And I used to keep in touch a lot with my professors because instead of I wouldn't say wasting, but instead of spending time just like talking the same thing, I love you over and over, might as well use that towards networking, meeting ambitious people, meeting your professors, because मेरे professors say you won't believe I got 2-3 job offers after I graduated. Oh my god. Just because I was in good books with them, I was in good terms with them. और करना कुछ नहीं होता. All you have to do is just time to time conferences होते हैं या फिर seminars होते हैं, उसमें आप जाओ, उनसे थोड़ी बहुत बातें करो, and they are more than happy to help. Like मेरे एक professor ने, he spent 3 hours with me designing my resume. Oh my क्योंकि god. I just and it was his generosity. I wasn't like extraordinary in terms of human relationship. तो आप अपनी कॉलेज लाइफ या मतलब स्टडी लाइफ के स्ट्रगल को मतलब क्या कहना चाहोगे? मींस इज इट वर्थ इट टू हैव दैट स्ट्रगल? Difficult question. It's hard. It's worth it for me. For all my friends, it was worth it. मेरे बैच में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो वापस गया हो, जिसको जॉब ना मिली हो. इवन दो ऐसे लोग भी थे जो बहुत रिलैक्स थे, उनको भी अल्टीमेटली दे वोक अप एंड स्टार्टेड टू हाथ पैर मारने लगे, तो उनको भी सेटलमेंट तो हो गया. सो आई थिंक इट्स वर्थ द स्ट्रगल. इफ यू स्ट्रगल हार्ड इनिशियली, you get settled very quickly. If you wake up late, so you panic. आपको बहुत कम टाइम में आपका पीआर वगैरह करो, जॉब करो, it's very hard, and then you can be also one of the unlucky ones, but it's worth it. It's worth it. You need a strong motivation. बहुत लोग के अलग अलग रीजंस होते हैं कि किसी को घर पे जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो, किसी को जैसे सब कुछ है वहां पे, बट दे जस्ट डोंट लाइक द लाइफस्टाइल देयर. किसी के पेरेंट्स कह रहे हो, पेरेंट्स जो बताते हैं, दैट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, बिकॉज व्हेन यू आर डाउन, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है, दे विल से बेटा कोई नहीं, हो जाएगा, संभाल ले. बट अगर
वो ऐसा बोले कि नहीं नहीं यार वापस आ जा, तो आई हैव सीन पीपल इवन गो बैक बिकॉज ऑफ दैट रीजन. But it's worth it. You have spent your money. Go through the grind for a few years. You will enjoy your life rest of the time. तो कॉलेज खत्म करने के बाद में, आपकी स्टडीज खत्म करने के बाद में आपने आपको जॉब मिली, जॉब और जब जॉब आपको मिली तो आपने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का कब सोचा? Actually, जैसे ही मेरी स्टडी खत्म हुई तो मेरी पीबीसी की एग्जाम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट थी. आई जस्ट हैड वन मोर एग्जाम टू गो. So I was getting public health jobs. As I said, they were around like 70 grand or so. और 6 months के बाद अगर मैं मेरा पीबीसी क्लियर कर लूं तो मेरा सैलरी हो जाता था ऑलमोस्ट 100,000. सो मैंने सोचा कि आई विल गो विद द पीबीसी पाथ. सो आफ्टर यूएफएस में ग्रेजुएट हुआ, आई मूव टू ब्रिटिश कोलंबिया क्योंकि मेरे वाइफ मेरे से 1 साल बाद में आए थे, तो शी वाज स्टिल स्टडिंग. So I found work as an odd job as in an Indian restaurant वगैरह. And जब मैं वो रेस्टोरेंट में मैं और मेरे वाइफ दोनों एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे. अच्छा. So when we used to go, we would see a Tesla showroom in our route, and like ऐसा था कि एक दिन ये गाड़ी लेनी है. It's like a Model X थी and it's like $165,000 car. उसके बाद दैट इज द ड्रीम दैट लेफ्ट. फिर मेरे वाइफ को भी जॉब मिल गई, मेरे को भी जॉब मिल गई. वी बोथ फॉर गेटिंग लाइक 6 digit फिगर्स. वाज गुड, इट वाज गुड. देयर वाज नो नीड टू डू बिजनेस. बट मेरी डॉटर तब हुई थी और मेरे वाइफ इंडिया गए थे बिकॉज शी गॉट मैट लीव वगैरह. और आई यूज्ड टू डील विथ लॉट ऑफ एडिक्शन पेशेंट्स, जो मेथाडोन पेशेंट्स वगैरह होते हैं. तो उनकी लाइफ बहुत बुरी होती है. तो एंड मोस्ट ऑफ देम वर स्कूल स्टूडेंट्स, लाइक यू वोंट बिलीव, बहुत लोग टीनेजर्स थे. तो मुझे था कि यार मुझे मेरी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजना है, ऐसे मतलब नहीं. और मैंने देखा यार प्राइवेट स्कूल इज लाइक 30-40,000 अ ईयर. एंड अगर 2 बच्चे हो तो इवन दैट्स मोर. मेरे को ये कार लेने का भी ड्रीम है. तो आई वाज लाइक आई कैन नॉट डू ऑल दिस With a विथ job. जस्ट विथ अ जॉब. स्पेशली जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है टैक्स भी इतना चले जाता है. Yes. तो बिकॉज व्हेन यू हैव अ कंपनी योर टैक्स इज 13%. व्हेन यू हैव जॉब फॉर एग्जांपल आपका 40-45%, 50% चले जाता है. तो आई एम लाइक 13% और 40% में बहुत डिफरेंस है. सो देन मेरे वाइफ इंडिया गए थे, तो उनका तो मैट लीव चल रहा था और मुझे पता था सब लोग मना करेंगे, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं और मैं जॉब छोड़ के घर चले गया वापस. बिकॉज आई हैड टू गो फॉर 1 month एज वेल आफ्टर सम टाइम. तो बहुत लोग मतलब सब नाराज हो गए कि ऑफ कोर्स ये क्या है, इतनी अच्छी सैलरी है, जॉब छोड़ दी, ये वो. तो इनकी भी मैट लीव में आधी सैलरी हो जाती है, तो ये क्या है, मतलब ये वो. लाइक ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने सबको समझाया कि देखो अगर मैं फेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो जितने हमने 3-4 साल में पैसे इकट्ठे किए वो तो चले जाएंगे, दैट्स ओके. बट हम अभी यंग है, वापस से वो कलेक्ट कर सकते हैं. बट अगर मैं फेल हो गया तो मैक्सिमम इज आई गो टू माय जॉब, माय प्रीवियस जॉब, व्हिच इज अ 6 digit जॉब. तो लोगों का जो बेस्ट केस, लाइक जो बेस्ट केस सिनेरियो है, दैट वाज माय वर्स्ट केस सिनेरियो. और उसके बाद भी अगर मैं ट्राई ना करूं तो लाइक 3 dates की तरह यू फील लाइक कि आपने सारी जिंदगी ट्राई नहीं किया और फिर यू हैव लाइक लाइफ टाइम रिग्रेट्स. So then I just thought to jump in and try my luck. Yeah. तो आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया इस डिसीजन में? It was, yeah, क्योंकि देखो बहुत ही मेरे लिए फायदे, मतलब it was a very strategic time because क्या था कि मेरे वाइफ काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी सैलरी आ रही थी बिकॉज ऑफ मैटरनिटी लीव. ठीक है, तो हमारा घर का खर्चा चल रहा था. मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ. अभी फार्मासिस्ट को 6 digit सैलरी पे करना व्हेन यू आर अ न्यू बिजनेस इट्स ऑल इम्पॉसिबल, अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस ना हो. तो पर मैं अगर खुद काम कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम नॉट पेइंग माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वर्किंग कैपिटल. और मेरे वाइफ भी मेरे साथ ज्वाइन हो गए एज अ फार्मेसी असिस्टेंट. सो वी हैड इनफ स्टाफ फ्रॉम डे वन. मेरे पेरेंट्स भी आ गए. They kept my little daughter.
सो ओवरऑल एक बार जैसे एक बार सब रूठ जाते हैं, बट फिर व्हेन यू स्टार्ट फिर सब घर वाले ही होते हैं, एवरीवन इज योर वेल विशर, तो सब सपोर्ट करते ही हैं आपको मैंने अल्टीमेटली आपके डिसीजन। यस यस। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, 1 डेढ़ साल मुझे बिजनेस पिकअप करने में लगा, तब तक आई डिडंट हैव टू पे एनीवन सैलरी, तो मेरा चल गया। जैसे ही पिकअप हो गया, आई स्टार्टेड टू हायर फार्मासिस्ट असिस्टेंट्स वगैरह। मेरे वाइफ भी शी वेंट बैक टू हर प्रोफेशन, तो उसने भी उसका एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, एज अ फ्रीलांस आर्किटेक्ट। प्रीवियसली शी यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी। मेरा भी अभी जैसे वी आर ओपनिंग आवर थर्ड फार्मेसी, तो once once it the ball gets rolling, it becomes very easy. Banks also started to give me finance. बैंक तभी फाइनेंस देती है जब आपको उसकी जरूरत नहीं होती, बट दैट्स द रियलिटी। फाइनली आपने टेस्ला खरीदी कि नहीं खरीदी? हाँ खरीदी, मैं दिखाता हूँ। कैसे एनीवेज। अरे वाह, Okay. वेरी गुड, Yeah. ब्यूटीफुल। Yeah. ये कौन सा Thank you. मॉडल है ये? ये मॉडल एक्स है, ओके, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज, ग्रेट यार, ग्रेट। वैसे आपको देख के आई नो, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग मोटिवेटेड तो होने वाले हैं, एटलीस्ट उनको दे शुड हैव सम, एटलीस्ट यू शुड हैव सम गोल्स इन लाइफ, so you put this as a goal and started your journey, means it is really very good. यार लाइक वट एवर यू डू, जॉब करो या बिजनेस करो, यू मेक श्योर कि आपका एक फाइनेंशियल टारगेट हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अमरिंदर करके, he was with me in public health and I used to make sure कि I only stay with such cohort of people who are ambitious, मतलब ऐसे लोग जो मतलब टाइम पास करते, I wouldn't be too close to them. So he was a dentist. Dentist को भी 2-2.5 लाख की यहाँ पे annual income होती है on an average, but he wanted to be in like public health. So he became a public health professional. At the end, he became director of health, province of Saskatchewan. Oh my So god, it's a very big position. yeah, And now he is a professor in University of Saskatchewan and also director of health, but the city, Saskatoon city. So he's drawing 6-digit salary from both the places. One is a professor and one is that city director, and he only works like 3-4 hours a day it's maximum. very good achievement, it's very massive क्योंकि achievement. yes, so आप जॉब करो या बिजनेस करो, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नजर में रखना है। डोंट लाइक कई लोग मैंने देखे हैं जो मेरे फ्रेंड्स थे या दूर के भी फ्रेंड्स थे, बहुत टाइम पास किया उन्होंने, और currently only thing they get is like 2 weeks holiday, whole year. Yeah. Like we are going Hawaii next month. I'm Okay. spending, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैं कितना स्पेंड करूँ, but like say I'm spending $1,000 a day for like staying in a good hotel and all that. I'm going for 3 weeks, and this is not my only vacation. I'll go future maybe जैसे. So it's just like you need to make sure कि the lifestyle you have in your dreams, you achieve it by saving time. जो कहते हैं ना time is money, it's actually very true in capitalistic world like Canada. Like I wanted to buy a TV, so that was like the Sony flagship TV, 10,000 का था, like 10 grand का. I didn't even have to think twice कि मेरा bank balance क्या है. I know I have, like, and I don't have to worry about that. So that stage you have to reach, and everyone has that capacity. Only thing is you need to be sincere. मैंने बहुत लोग को देखा है जो sincere नहीं है, और इसी वजह से दे कनाडा को कोसते हैं कि यार यहाँ पे तो पैसे नहीं बनते, यूएस जितने पैसे नहीं बनते। यूएस में तो यार अरे वो सही है कि 20-25% डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सचेंज रेट, बट उतना आप ज्यादा कमा लो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप जितना एफर्ट करते हो, एक चीज तो मैंने भी देखी है कि आप जितना एफर्ट डालते हो यहाँ पे, गुड़ जितना है उतना ही मीठा होता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, वट एवर एफर्ट यू पुट यू गेट द रिटर्न।